हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ के छठे अध्याय पे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें भक्ति के 64 अंगों का वर्णन है। हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी ने भक्ति के बहुत अनगिनत अंगों का वर्णन किया। अनगिनत यानी ऑफ कोर्स must be counted, but there are many limbs have been described, and among that Srila Rupa Goswami Pad had chosen 64 limbs. Specifically we discussed the 57, 58, but some of the limbs are described more than once. Why? Just to emphasize the importance of those limbs. These have been described more than once. So the first 10 limbs we saw. You remember what are the first 10 limbs? Among the first 10 limbs, the first 3 limbs are very important. They're concerned with accepting our spiritual master. What are the first 3 limbs? You remember? पहले 3 लिम्ब क्या डिस्कस किए थे हम? Yes. गुरु पादाश्रय. आदो गुरु पादाश्रय. आदो गुरु पादाश्रय. First of all, taking shelter of a bona fide spiritual master. Second, गुरु की वाक्य. दीक्षा कृष्ण शिक्षा आदि शिक्षणम. is taking diksha and acquiring knowledge from him. गुरु से दीक्षा लेना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना. और तीसरा, विश्रम्भेन गुरु सेवा. Yes, Vishrambyena Guru Seva. Rendering service to spiritual master with a great love and affection. So these are the 3 limbs, and of course the 2 more also similar. Sadharma Pricha, Sadhu Vartma, Anuvartma, that following the rules of the scriptures as approved by Acharyas, following footsteps of great Acharyas, महान भक्तों के चरण चिन्हों का पालन करना. और सद्धर्म पूछा, आध्यात्मिक जीवन के बारे में गुरु से इंक्वायरी करना, प्रश्न पूछना, उनका उत्तर प्राप्त करना. तो ये अंगों का वर्णन यहाँ पे आते हैं गुरु के संदर्भ में. और अगला अध्याय आप खोलोगे. Actually, we'll not read right now all the 64 limbs. We're going to the next chapter, scriptural proof of 64 angas of devotional service. वो पढ़ेंगे और वापस आएंगे. उसमें हम अभी गुरु के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं. और हम शिक्षा गुरु जो किताब है शिवराम स्वामी महाराज जी द्वारा लिखा गया किताब, इसके भी ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर एक बार खोल सकते हैं मुझे आप. 7वां अध्याय शेयर करें. जी प्रभु. तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये श्लोक आता है. जब तक माता जी शेयर करें आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, तस्मात् गुरु प्रपद्येत, जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्, जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्, शाब्दे परे च निष्णातम्, ब्राह्मणी उपशमाश्रयम्. The first principle in a spiritual life is to surrender unto a spiritual master. Tasmat gurum prapadyet. One must surrender unto spiritual master. But what is the quality of the spiritual master? So it's mentioned that the spiritual master must be shabde parecha nishnatam. He must be expert, conversant, nishnatam. Nishnat chahiye. Kisme nishnat chahiye? Shabde. Teachings of spiritual teaching, teachings of Vedas, specifically teachings of Bhakti scriptures. He may not be very expert in certain portion of scriptures, but he must be very expert in Bhakti scriptures. And one should be attached to that absolute truth, accomplished in hearing and chanting. Pare Brahmani Upashamayashrayam. One should be fully tranquil. Fully tranquilish, जैसे one should have conquered various urges. अपने जो अलग अलग urges हैं, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में वेगों के बारे में वर्णन किया है. वाचो वेगम, जिह्वा वेगम, मूत्रो उपस्थ वेगम, मनसा क्रोध वेगम. सो ये वेगों को जो कंट्रोल कर पाता है,
one who is able to conquer over these urges, he is qualified to make disciples all over. वो सारे संसार में शिष्य बना सकता है. तो ये हम डिस्कस करेंगे श्लोक भी. ओके, तो ये पढ़ लेते थोड़ा सा, उसके बाद में डिस्कस करेंगे. And then study from Shiksha Guru book also. So who will read first paragraph? Please read. कौन पढ़ेगा पहला पैराग्राफ? Should I, Prabhu? Please चित्रमता जी पढ़िए. Accepting the shelter of bona fide spiritual master. In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 3rd chapter, verse 21, Prabhupada tells Maharaj Nini, "My dear king, please know for certain that in the material world there is no happiness. It is simply a mistake to think that there is happiness here, because this place is full of nothing but miserable conditions. Any person who is seriously desirous of achieving real happiness must seek out a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. The qualification of spiritual master is that he must have realized the conclusions of the scriptures by deliberation and argument, and thus be able to convince others of these conclusions. Such great personalities who have taken shelter of Supreme Lord, leaving aside all material considerations, are to be understood as bona fide spiritual master. Everyone should try to find such a bona fide spiritual master in order to fulfill his mission of life, which is to transfer himself to the plane of spiritual bliss." Yes, तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? भौतिक संसार के प्रति we should develop distaste, अनासक्ति आना चाहिए. तो प्रभुपाद जी नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत ग्रंथ में भी लिखते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार से उब नहीं चुका है, unless one has developed distaste towards material life, material world, he is not qualified to take दीक्षा. वो दीक्षा के लिए पात्र नहीं है. जब व्यक्ति सोचेगा नहीं इस भौतिक संसार में मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, मुझे भी आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जाना है, तो तब वो दीक्षा लेता है. इनिशिएशन, दीक्षा इज अ बिगिनिंग, बट दैट बिगिनिंग it has a background of distaste from this material world. भौतिक संसार में अभी भी कोई व्यक्ति सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है, उसमें कोई आसक्ति आशा है, तो फिर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का गंभीरता से पालन नहीं करेगा. So this first qualification, that one has to first of all understand there is no happiness here, and one should have desire to get out of this world. Right? So one who is really desirous of such a real happiness, what he does, he'll seek a shelter of a bona fide spiritual master. आध्यात्मिक गुरु का वो ढूंढेगा और उसका आश्रय लेगा. कैसे? दीक्षा से. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु उत्तम. और फिर दीक्षा लेगा. The qualification of spiritual master is that he must have realized conclusion of scriptures, शब्दे परेच निष्णातम, by deliberation and arguments. So one who has sufficiently studied, बहुत अभ्यास किया शास्त्रों का. और कौन से शास्त्र? भक्ति शास्त्र. तो we'll discuss this. Just great personalities who have taken shelter of Supreme Personality of Godhead, leaving aside all material consideration, are to be understood bona fide spiritual masters. तो जिन्होंने भगवान का पूर्ण आश्रय लिया है, सारे भौतिक जीवन का त्याग करके, उनको कहा गया उनको bona fide spiritual master, वो प्रामाणिक गुरु है. तो ऐसे ही प्रामाणिक गुरु को व्यक्ति को ढूंढना चाहिए. किस लिए? जीवन का जो मिशन है कि भगवत धाम जाना, उसको पूर्ण करने के लिए. ओके, यू कैन स्टॉप शेयरिंग. तो शाब्दे परिच निष्णातम, यहाँ पे भक्ति स्क्रिप्चर आया है. तो आप गुरु से ये एक्सपर्ट ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गुरु को सारे वेद भी पता रहने चाहिए, वेदों को गाते भी आना चाहिए, या उपनिषद का सारा जानकारी होना चाहिए. दैट मे नॉट बी द केस. कैसे पता चलता है? हमें भागवतम से भी पता चलता है. भागवतम में पहले स्कंद में 4थे अध्याय में 13वां श्लोक आता है. तो वहां लेके तत्सर्व न समाचक्षु पृष्ठो यदि किंचन मन्ये त्वं विषये वाचाम स्नातम अन्यत्र छांदसा. इससे कहा गया कि we know that you are expert in meaning of all subject except some portions of Vedas. हम जानते हैं कि कुछ वेदों के पोर्शन ऐसे आप नहीं जानते इतना एक्सपर्टली. शौनक आदि ऋषिज are telling to Sutta Goswami that there are certain portion you are not expert. We know that, although you are expert in other portions of Vedic scriptures. And thus you can clearly explain the answers to all the questions we have just put to you.
तो भक्ति के विषय में जो भी हम प्रश्न पूछेंगे जीवन के विषय में, उसका पूर्ण उत्तर आप दे सकते हो। यू मे नॉट नो द ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, है ना। तो जीव गोस्वामी भी तत्व संदर्भ में शब्द प्रमाण को एस्टेब्लिश करते हैं। ऑल द प्रमाण, जैसे आप जानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, तो सारे प्रमाणों में शब्द प्रमाण कैसे सर्वश्रेष्ठ है वो स्थापित करते हैं जीव गोस्वामी का। और फिर शब्द प्रमाण में श्रुति कैसे श्रेष्ठ है, श्रुति के साथ में उस स्मृति को भी एस्टैब्लिश करते हैं, बिकॉज़ स्मृतिज आर स्पीक सेम थिंग व्हाट द श्रुति स्पीक। जैसे श्रुति यानी वैदिक ग्रंथ है या जो उपनिषद जिसको श्रुति कहा गया है, और जो पुराण है उनको स्मृति कहा गया है, परंतु पुराण की वही कहते हैं जो श्रुति कहती है। सो दैट इज पुराणास आर एस्टैब्लिश्ड, बट देन एस्टैब्लिश हाउ द पुराणास बेटर देन एक्चुअली श्रुतिस, because there is a direct understanding of God. Krishna is there in Smritis, and there's a direct revelation of sages, and it's very digestible, it's understandable. So Smritis are higher actually compared to Shrutis, and among Smritis he establishes the Bhagavad Purana is best among all the Smritis. सारे स्मृतियों, सारे पुराणों में भागवत प्रमाण या भागवत पुराण कैसे श्रेष्ठ है वो एस्टैब्लिश करते, स्थापित करते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु है उसे इस प्रकार के भक्ति स्क्रिप्चर्स, तो भक्ति स्क्रिप्चर्स कौन से, श्रीमद् भागवत पुराण है, गोपाल तापनी उपनिषद है, महानारायण उपनिषद है, या पद्म पुराण, उत्तरखंड है, इसमें सारे भक्ति के बारे में वर्णन आता है। तो आध्यात्मिक गुरु को ये सारे शास्त्रों में उसको पारंगत रहना चाहिए और डिटेल ना पता रहे। परंतु यहाँ पे क्या लिखा गया है कि the conclusions of scriptures, but at least he should be very conversant with the conclusions of scriptures. He may not know every shloka probably, okay, but he should be very conversant with conclusion कि शास्त्रों का conclusion क्या है। He may not quote so many shlokas, fine, but he is very established in conclusion. Established means he has a firm faith in conclusion scriptures. He may not know his best, of course, if he knows also, but even he may not know the details, but he has a firm faith in conclusions of scriptures. So that means Uttamadhikari is both, actually knows the scriptures and he has firm faith. Madhyamadhikari is firm faith but he may not know, so Madhyamadhikari can also be accepted as a spiritual master. In that sense, Srila Prabhupada said even a Kanishtadhikari can be accepted as spiritual master, right? But what is qualification of Kanishtadhikari? That he has firm faith, so he has faith, and Kanishtadhikari, of course, इसमें ऐसा definition है जैसे हम पढ़े नेक्ट्रॉप डिवोशन में कि Kanishtadhikari, his faith is wavering actually. So Srila Prabhupada write that one may accept any guru, but thing is the guru will able to take only up to the realization he has got. So one should be very careful in accepting. जितना उसका साक्षात्कार है वहां तक वो ले पाए उसके शिष्यों को, इसलिए व्यक्ति को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि किस प्रकार के गुरु का वो आश्रय ले रहे हैं। स्पेसिफिकली नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में गुरु का आता है कि जिसमें वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, मुद्र पुस्त वेगम, एतान वेगान विषयेत तीरा सर्वामपि मां पृथ्वीम सशिष्या, कि जो इस प्रकार के वेगों को धारण कर पाए, और नॉट सकम्स टू दिस काइंड ऑफ अर्जेस, विच अर्जेस, बोलने का अर्ज है या मन का अर्ज है, क्रोध का जो वेग है, जीवा का वेग है, जीवा यानी बोलते रहने का, कुछ भी कोई विषय का प्रजल्प करने का, वाचो वेगम यानी वाचो वेगम यानी बोलने का, और जीवा वेगम यानी खाने का, मनसा क्रोध वेगम, क्रोध का जो अर्ज है उसको जो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ऐसे लोगों को आप गुरु का स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये सिंपल लगता है ना पहले क्वालिफिकेशन है, बट इट इज नॉट दैट इजी। सो जस्ट टू हैव दैट, एक्चुअली अदर 7 श्लोकास आर स्पोकन, want to come to the level of being a spiritual master for entire world, what one has to do so that one is able to control, that is quoted in other shlokas, बाकी जो श्लोक है उसमें कहा गया है। जैसे अगला श्लोक आता है कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो, जो क्वालिफिकेशन है, नेक्स्ट श्लोक कम्स अत्याहार प्रयासस्य प्रज्वल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यश्च षड्भिर भक्ति विनश्यति, कि क्या करने से भक्ति चला जाता है। सो इफ यू डोंट हैव फेवरेबल situation, how you control your urges? So first of all you have to accept things which are favorable, अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूल है उसका वर्जन करना। प्रतिकूल क्या है? त्याग, प्रयास, प्रजल्प, यमाग्रह, जनसंग, अभक्तों का संग करना, और भौतिक विषयों के प्रति लवल्य ग्रीड रहना, लालसा रहना, ये सारा भक्ति के लिए प्रतिकूल है, तो इसका त्याग करना पड़ेगा। इसके बिना कैसे आप अर्जेस कंट्रोल कर सकते हो, है ना?
पूरे दिन हाथ में आपके मोबाइल है और सारे एप्स इंस्टॉल है उस पे, तो हाउ यू स्टॉप social media, right? First of all, you have to create situation where you're not all the time with things which distract you. So that is giving up unfavorable, and then you have to accept favorable. Utsaha nishchay dhairya tat karma pravartana sangha त्याग सतो उपदेशद्भिर भक्ति प्रसीदति. उत्साह निश्चय और धैर्य और रेगुलर प्रिंसिपल का पालन करना, अभक्तों का संग छोड़ देना और महान भक्तों का चरण चिन्हों का पालन करना से हमारा भक्ति क्या होगा, फ्लरिश करेगा. परंतु भक्ति फ्लरिश करने के लिए आपको भक्तों के बीच में रहना पड़ेगा. ये सारा तत्वों का पालन कहाँ पे कर सकते हो आप, कि भक्तों के संग में कर सकते हो. तो कैसे भक्तों का संग प्राप्त होगा? ददाति प्रतिगृह्णाति गुहे मत्थाति पुच्छति भुंक्ते भोजायति चैव षड्विध प्रतिलक्षण. जब आप ये सारे प्रतिलक्षण करोगे तब आप भक्तों के संग मिलेगा, and then you'll be happy in that association of devotees. You know, 6 kind of exchanges. Then you become close to devotees. When you become intimate with devotees, no प्रीति बनता है आपका भक्तों के साथ में. Unless there is intimacy between devotees, there is no question of loving exchanges, or there is no question of practicing devotional service intimately. तो वो intimacy कैसे आएगा? तो वो intimacy आएगा ददाति प्रतिगृह्णाति, exchange, giving and accepting gifts and sharing spiritual truths. So these all things are there, and accepting food and giving food, prasadam. So by that we actually will develop intimacy with devotees. But intimacy comes, then we see faults. So we should not see faults with devotees actually. Of course, that is also mentioned when intimacy comes. We should also understand how to offer proper respect to each devotee. So व्यक्ति को अगले व्यक्ति के स्थान के अनुसार उसको रिस्पेक्ट ऑफर करना. तो दैट श्लोक कम कृष्णेति यस्य कीर्तनं मनसान्द्रियते दीक्षापि चेत् प्रतिविस भजन्तमीशं. तो one has to offer respect as per the qualification of a respective devotee. So then we will able to take proper association of a devotee. We will understand that whose association we should actually desire and seek. और किसका हमें संग प्राप्त करना चाहिए और किससे संग में कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये हम सीखते हैं. और then when we grow close, then we may commit offenses. So he says that actually दुष्टे स्वभाव जनते बहुशिष्य दोषे प्राकृतमिह न प्राकृतमिह भजम जनस्य पश्येत. जो भगवान का भजन कर रहे हैं उनके जो दोष है, आपको शरीर में कोई दोष है, जैसे गंगा में आप कभी कभी आपको बुद्धि दिखाई देते हैं, गंदगी दिखाई देता है, परंतु आप वो नहीं देखते. उस प्रकार से भक्तों का दोष हमें नहीं देखना है. तो उसका शिक्षा देते हैं प्रभु गोस्वामी पाद. और फिर अगला देखते कि आपको कैसे फिर भजन करना है, क्योंकि संग मिल गया. तो संग में सबसे बड़ा बाधा क्या है? तो सबसे बड़ा बाधा है संग में कि हम सोचते हैं कि मुझे रुचि निष्ठा से पहले आ जाए. रुचि जब आ जाएगा तब हम भजन करेंगे निष्ठापूर्वक. ये बहुत बड़ा बाधा है साधना भक्ति में. एक्चुअली सबसे पहले आता है निष्ठा, उसके बाद में रुचि आता है. और निष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको रोज किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वादि कर्मात् भवति तदनुमोदः. Every किंतु आदराद अनुदिनम, अनुदिनम means every single day when you practice what? Chanting the holy names of Krishna, hearing Krishna katha. So when you practice different limbs of devotional service every single day, तो what happens? तो स्वादि कर्मात् भवति, धीरे धीरे हमारा रुचि उत्पन्न होता है. तो निष्ठा, first of all comes actually भजन क्रिया, then निष्ठा comes, then रुचि comes. So we have to become निष्ठित devotee, then रुचि will come. तो ऐसे कहा गया है. और फिर उसका परिणाम क्या होगा? ऐसा प्रकार से भजन करने से क्या होगा कि हमारा राग भक्ति उत्पन्न होगा. तिष्ठन् व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नेदखिलम उपदेशसार तन्नाम रूप चरिता कीर्तनाम तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनाम श्रुत्यो क्रमेण रसना मनसी नियुञ्च. आपका जो रसना मीन्स आपका जीवा है, आपका मन है, आपका जो शरीर है, पूरा आपको भगवान की सेवा में लगाना है. भगवान का नाम रूप चरित्र उसका कीर्तन करना है. आपका मन और जीवा लगाना है उसमें. उससे क्या होगा? आपका राग उत्पन्न होगा. And when that rag is developed, that attachment, firm attachment to Krishna is developed, then automatically वाचो वेगम जीवा उदरोपस्थ वेगम मनसो क्रोध वेगम, ये सारा वेगों को नियंत्रित करना automatically आसान हो जाता है. Automatically, otherwise it's not possible. We may say okay I'll control, but it doesn't happen. Why? Because we don't have परम दुष्टा निवर्तति, we don't have higher taste. अभी तक हमें ये भक्ति का रुचि प्राप्त नहीं हुआ है. रुचि प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अभी हमें हमारे इंद्रियों को, मन को, जीवा को, उदर उपस्थ क्रोध, ये सबको वेगों को
नियमित करना बहुत मुश्किल जा रहा है. It's not happening. So one has to come to this platform of attachment to Krishna. Then it becomes automatically possible. And for such a devotee who has developed attachment to Krishna, we have to accept such a spiritual master. Then it becomes very easy. So qualifications of spiritual masters are also given in various scriptures. Morning also I was searching actually what is the qualification of a spiritual master. तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी के द्वारा अलग अलग पात्रता दी गई कि गुरु कौन है. तो यहाँ पे हमने देखा था कि शब्दे परिचय निष्णात, जो वैदिक श्रुति स्मृति स्मृतियों में श्रीमद् भागवत जब भक्ति ग्रंथों में जो पारंगत है, ऐसे गुरु का स्वीकार करना चाहिए. फिर आगे आता है, रीडिंग फ्रॉम हरि भक्ति विलास. तद विज्ञानार्थम सद गुरुमेवाभिगच्छेत शमित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम आचार्यम पुरुषो वेद. श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार कोट करते हैं ये श्लोक. तत् विज्ञानार्थम सद्गुरुम एवाभिगच्छेत, सद्गुरु के शरण में जाना. तो गुरु कौन है? उन्होंने एक्सपर्ट आचार्य पुरुषो वेद, जो शास्त्र जानता है, और ब्रह्मनिष्ठम, वो पूर्ण तरह से आध्यात्मिक जीवन में स्थित है, उसमें भौतिक जीवन का लालसा नहीं है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए सदैव तत्पर है. ऐसे गुरु का आश्रय में लेना चाहिए. आगे भी गुरु की पात्रताएं बताई गई है. अपने से हम आध्यात्मिक जीवन के जो सत्य वो नहीं जान सकते. आध्यात्मिक जो जीवन है हमें डिसेंडिंग प्रोसेस है, गुरु से शिष्य को प्राप्त होता है. That is the way of accepting spiritual knowledge. Just by reading some books or going on the internet reading some articles, will not be qualified to practice a pure devotional service. निश्चित भजन नहीं कर पाएगा, उसके गुरु के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा. परंतु गुरु का पात्रता हरि भक्ति विलास में अलग अलग श्लोकों में आया है. तो यहाँ पे जैसे आया कि श्रद्धावान अनुसूयश्च प्रियवाक् प्रिय दर्शन शुचि सुवेश तरुणः सर्वभूत हितेरतः. फेथफुल, श्रद्धावान है, और इज फ्री फ्रॉम एनवी. अनुसूय, जिसमें हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं है, और इज वेरी प्लेजिंग इन स्पीच. प्रियवाक् प्रिय दर्शन, और इज प्लेजिंग टू द आईज, एंड वन इज वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, सर्वभूत हितेरतः. One is धीमान, one is intelligent, बहुत बुद्धिमान है, humble at heart, अनुद्धातमति. One is humble at heart, perfect, non-violent, thoughtful, virtuous, intent on worshiping the Lord, grateful, affectionate to his disciples. Sadgunochi, kritadhi, shishya vatsalah. One is very, very affectionate and loving and kind to his disciples. One is intelligent, humble at heart, perfect, non-violent, thoughtful. Such a spiritual master should be accepted. और भी क्वालिफिकेशन दिए गए इसमें हरि भक्ति विलास में. He is free from material desires, aware of spiritual truth, teacher of spiritual truth, learned in Vedas and scriptures. One is able to deliver the others, able to surmount obstacles. One is able to cross over the obstacles which come in devotional service. One goes to the heart of the spiritual matters. One who understand what is the actual issue. One is able to find out that, and one who understand the secret of spiritual philosophy. Okay. आगे दिया गया कि person who is greedy to get worship, praise, money from his disciple is not true spiritual master. One is very greedy for getting a respect, praise from its disciples. A true spiritual master is ocean of mercy, perfect, and a person who does good to everyone. Kripa Sindhu, Susampurna. जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं कृपा सिंधु होते हैं. One is very, very merciful to his disciples. Susampurna. One who is perfect. One who has no faults. Sarva सत्वोपकारक, सर्व सत्व उपकारक. One who does good to everyone, सबका कैसे भला होगा इसका उसका चिंतन हृदय में रहता है. निष्प्रह सर्वथा सिद्धा, सर्व विद्या विशारदः, सर्व संशय संचेतः, नालसो गुरु अर्थ, गुरु अर्हतः.
यहाँ पे लिखा गया है कि निष्प्रहा, जिसके भौतिक इच्छा है, जिसके हृदय में नहीं है। और सर्व विद्या विशारद, आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण तरह से विशारद है। सर्व संशय संचेतः, सारे संशयों को दूर कर सकते हैं। अनालसः, जो आलसी नहीं है, जो भगवान की भक्ति में पूर्ण तरह से लगे हुए हैं, ऐसे गुरु का स्वीकार हमें करना चाहिए। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आए, हरि भक्ति विलास में स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार के गुरु का हमें स्वीकार करना चाहिए। तो उसमें भी अभी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, तो सबसे पहले ओरिजिनल गुरु कल हम देख रहे थे श्री कृष्ण भगवान है, जो संसार में आते हैं। तो भौतिक प्रकृति के दो कार्य है। एक कार्य है कि जो लोग माया का दो कार्य, एक कार्य है कि जो लोग भौतिक आनंद लेना चाहते, भोग करना चाहते, उनको चेतना को आच्छादित करके रखना, एक कार्य है भौतिक माया शक्ति का। दूसरा कार्य है कि जो जीवात्म इस संसार में फंसे हुए हैं, उनको धीरे धीरे रिफॉर्म करना और आध्यात्मिक जीवन की तरफ उन्हें लेके आना। So Maya does these two functions. One is to cover the intelligence, and second is to actually those who want to come to reform living entities by punishing them and gradually bringing them into the proper spiritual life, proper platform spiritual life. Right. So Krishna himself comes to do this function. Krishna comes to establish the principles of religion and to actually take people, back to God. And Krishna instructs by establishing the principles of spiritual life. कृष्णा की उस भगवत गीता, सो भगवत गीता जो है वो कृष्ण से अभिन्न है। एक जगह पे कहा गया है कि जैसे आप गीता महात्म्य पढ़ोगे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट टू कोट इट, बट इट सेज दैट एज गुड एज कृष्णा आर कृष्णा's इंस्ट्रक्शंस, कृष्ण से अभिन्न है। तो जो भक्त होते हैं या जो डिवोटी, ही शुड आल्सो एबल टू सी कि जो गुरु है, जो कृष्णा के इंस्ट्रक्शन रिपीट कर रहे हैं, दे आर आल्सो नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, बिकॉज़ दे आर स्पीकिंग द सेम इंस्ट्रक्शंस एज दैट ऑफ कृष्णा। कृष्णा का सेम इंस्ट्रक्शन वो कह रहे। तो कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं, अर्जुन को देते हैं उपदेश, हम देखते हैं कि उद्धव को देते हैं उपदेश। और कृष्ण इस उपदेश को परंपरा में स्थापित करने के लिए कि ये उपदेश चलता रहे, देयर शुड नॉट बी एनी फॉल्ट। सो एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदुम, और ये ज्ञान जो परंपरा में बांटा जाता है, तो कृष्ण परंपरा को एस्टैब्लिश करता है। तो चार परंपरा, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एंड श्री संप्रदाय एंड ब्रह्म संप्रदाय, हमारा जो संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। और जो हमारा ब्रह्म संप्रदाय, उसमें चैतन्य महाप्रभु आए हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और सारे जो परंपरा है, तो बाकी चारों परंपरा जो सारे इस संप्रदाय में आता है। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय की शिक्षाओं को परिपूर्ण मनाया गया है, बिकॉज द एसेंस ऑफ ऑल, बिकॉज the teachings are all same, minute religious differences may be there, how they practice this teaching, अभिधेय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और ये सारे संप्रदाय का जो सार है इस गौड़ी संप्रदाय में दिया गया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो ये परंपरा आती है, तो इस परंपरा में गुरु का हम दीक्षा लेते हैं, तो दिन से दीक्षा लिया जाता है, उनको दीक्षा गुरु कहा जाता है। एंड समटाइम द दीक्षा गुरु may not be that much available, so you take a regular instruction from different Vaishnavas, so they are called as Shiksha Gurus. So all Vaishnavas are teaching us, some teaching us by giving classes and giving philosophy, and some Vaishnavas are teaching us by setting a proper example. कोई भी वैष्णव जो हरिनाम लेता है और जो भागवत सुनता है, जो अर्च गुरु का सेवा करता है, वो हमारे लिए गुरु के समान है। इस प्रकार से सारे वैष्णव हमारे गुरु हैं। क्यों? क्योंकि सारे वैष्णव अपने जीवन पद्धति, उदाहरण से मैं सिखा रहे हैं कि वैष्णव जीवन पद्धति का जीवन में स्वीकार करना है, हमें भगवान का भक्ति करना है, भजन करना है, अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं। So in one sense, all the Vaishnavas are gurus, but specifically those devotees who instruct us in spiritual knowledge, they are also spiritual teachers, because Srila Prabhupada in the translation to that shloka, Shriram Maharaj की मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, 4.34, Srila Prabhupada उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, उसमें Srila Prabhupada जी specifically mentions about the transmission of the knowledge. That's the main chief function of a guru, कि ज्ञान का प्रसार करना, गुरु शिष्यों को ज्ञान देना, आध्यात्मिक ज्ञान देना, that is the main function of guru। और वहाँ पे दीक्षा का एक बार भी वर्णन नहीं करते श्रील प्रभुपाद जी, वो हालांकि गुरु के बारे में श्लोक है 4.34, but श्रील शिवराम महाराज राइट that श्रील प्रभुपाद is not mentioning the word initiation there, so highlight is on the transmission of the knowledge, कि गुरु का मुख्य कार्य है शिष्य जो है उसको ज्ञान प्रदान करना। Just open this. Okay. Yes. और उसके लिए बहुत सारे संदर्भ भी देते हैं।
यस, जैसे संदर्भ देते हैं, पहला संदर्भ यहाँ पे दे रहे कि ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, कि गुरु है वो ज्ञान देते हैं। दूसरा संदर्भ देते शाब्दे परिचय निष्णातः, अभी जो श्लोक हमने पढ़ा, इज वेरी एक्सपर्ट इन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स एंड ही पासेस डाउन द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वन इज एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, दैट इज गुरु। चक्षुदान दिलोजय जन्मे जन्मे प्रभु से, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। फिर दीक्षा मीन्स दिव्य ज्ञानम क्षपयति इति दीक्षा, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज डिलीवर्ड, नो, दैट इज दीक्षा। और प्रभुपाद जी का एक लेक्चर कोट कर रहे हैं शिवराम महाराज यहाँ पे करके, दोज हु आर इनिशिएटेड दिस इवनिंग has several time explained what is meaning of initiation. Initiation means beginning of receiving transcendental knowledge. So initiation is beginning of receiving of a transcendental knowledge. जहाँ से हमें शिक्षा प्राप्त होता है वो initiation है, दीक्षा है। So the gift of transcendental knowledge is the greatest and purest commodity for devotee may acquire. तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होना है सबसे बड़ा, हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, बट सबसे बड़ा गिफ्ट है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना। And that is not a fanciful fabrication of a guru, but that is what years in a guru parampara. He accept this knowledge in a guru parampara. Okay. तो मत दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक मिनट नीचे वाला। Hare Krishna. Should I read, Prabhuji? Yes, please read. The purport is that one should not accept as a spiritual master someone who is the full number one, who has no direction according to the scripture's injunction, whose character is doubtful, who does not follow the principles of devotional service, or who has not conquered the influence of six sense gratifying agents. The six agents of sense gratification are the tongue, the genitals, the belly, anger, the mind, and the words. Anyone who has practiced controlling these six is permitted to make disciples all over the world. To accept such a spiritual master is the crucial point for advancement in spiritual life. One who is fortunate enough to come under the shelter of a bona fide spiritual master is sure to traverse the path of a spiritual salvation without any doubt. Hare Krishna. तो अभी हम ये पैराग्राफ डिस्कस कर रहे थे कि गुरु कौन है, गुरु की पात्रता है कि उसमें सद्गुण है, उसमें पूर्ण श्रद्धा है, वो अपने छह जो वेग है उसके ऊपर जीत प्राप्त कर चुके हैं, या जो उसको कंट्रोल, उसको नियमित कर पा रहे हैं। तो ऐसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए, और ऐसे गुरु का आश्रय लेने से हम आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण विजय, spiritual salvation, we can actually get the fruit of our devotion service by taking shelter of such a spiritual master, which is described here. One who is fortunate enough to come under the shelter of bona fide spiritual master is sure to traverse the path of spiritual salvation without any doubt. वो पक्का इस भौतिक संसार जो सागर है उसे पार कर पाएगा। कोई प्रश्न है किसी का? 10:30 हो चुका है, तो कल कंटिन्यू करेंगे। तो प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप प्लीज वो रिपीट करोगे कि भौतिक प्रकृति के कौन से दो कार्य हैं? One is to cover the intelligence, जो लोग भौतिक भोग करने आ रहे हैं उनको कवर करती है भौतिक प्रकृति, है ना, उनके ज्ञान को तो भूल जाते हैं, शारीरिक चेतना में रहते हैं। दूसरा कार्य है कि वो भौतिक प्रकृति को ताप देती है, और ताप देने से उसे रिफॉर्म करती है, धीरे धीरे उसको आध्यात्मिक जीवन की तरफ धकेलती है। प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका ऐसे कहा जाता है ना प्रभु? ऐसा भी कहा जाता है। यस। और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, आप बता रहे थे कि जितना भक्त को साक्षात्कार है उतना गुरु उसको आगे लेके जाता है, तो इसका मतलब क्या? मीन्स भक्तों को नहीं, जितना गुरु का साक्षात्कार है, समझो आपने ऐसे गुरु का, जैसे प्रभुपाद जी लिखे वन शुड नॉट एक्सेप्ट गुरु इज अ फुल नंबर वन, तो ऐसे गुरु का स्वीकार किया तो उतना ही वो सिखा पाएगा जिससे पतना है। लाइक गुरु का जितना साक्षात्कार है उतना ही वो शिष्य को ऊपर ले पाएगा। तो इसीलिए हमें गुरु जो सही में निष्णात है, ब्रह्मनिष्ठम है, ऐसे गुरु का स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो फिर हम जितना स्पिरिचुअल मास्टर का रियलाइजेशन उतना ही आगे बढ़ पाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
और वो दूसरा शब्द प्रमाण के बारे में बताएं। क्या माता जी, शब्द प्रमाण क्या? शब्द प्रमाण आप बता रहे थे ना, शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण और स्मृति प्रमाण। नहीं उसमें माता जी, श्रुति में या शब्द प्रमाण में श्रुति स्मृति आता है। अच्छा, शब्द प्रमाण उसमें दोनों भी आते हैं, श्रुति और स्मृति, परंतु जीव गोस्वामी एस्टेब्लिश करते हैं तत्व संदर्भ में कि कैसे स्मृति श्रेष्ठ है श्रुतियों से भी, यानी भागवत पुराण, ये दिस इज एब्सोल्यूट अथॉरिटी when you want to discern what is right or wrong, or what is spiritual and material, or what is bhakti. So what principle of spiritual life, what your Bhagavad Praman is, the Bhagavad ऐसे कहा है कि among all the education actually Vidya Bhagavatabdhi, Bhagavatam is the summit of all education, Vidya Bhagavatabdhi, भागवत से बड़ा कोई एजुकेशन नहीं। सो उन्होंने भागवत कैसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण एस्टैब्लिश किया है जीव गोस्वामी पाद में, तो संदर्भ में। प्रभु जी, श्रुति और स्मृति का क्या फंडामेंटल है? श्रुति तो जो हियरिंग होता है ना, हियर करके किया गया। श्रुति यानी जो भगवान के द्वारा जो रिवील किया गया, साउंड वाइब्रेशन, जैसे वेद है डायरेक्ट भगवान के द्वारा दिए गए, उसे श्रुति कहा गया है। तो वेदों को कोई, जैसे व्यासदेव ने लिखा है श्रीमद् भागवतम को, है ना, तो इसलिए वो स्मृति है, बिकॉज इट इज रिटन नॉट बाय द लॉर्ड, ऑफ कोर्स ही इज अ लिटरल इनकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड, बट ही इज अपीयर्ड एज अ सेज, so the scriptures written by sages, they are called as smritis, and the words of God, directly the words of God, they are called as shruti. जैसे उपनिषद और पुराण डायरेक्टली भगवान, सॉरी उपनिषद और वेद डायरेक्ट भगवान के द्वारा दिए गए। तो भगवत गीता श्रुति हो गया ना? भगवत गीता एक तरह से दोनों हुआ है। गीता comes in both ना, श्रुति and also स्मृति, दोनों में आता है। यस यस, एक दोनों है, क्योंकि महाभारत में आता है जो स्मृति है, बट भगवान का वचन है, इसलिए दोनों भी आप उसको समझते हो। हरे कृष्णा भारत प्रभु, में दंडवत आता है प्रणाम। इसलिए स्मृति है, और भगवान ने कहा है इसलिए श्रुति है, राइट प्रभु जी? यस यस। संगीता हरे मैडम। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, हमने आज क्या शिक्षा गुरु और दीक्षा दोनों का पढ़ा क्या इकट्ठे? आपने लिखा ना आज शिक्षा गुरु का आप वो करेंगे। वो हम कल करेंगे। अभी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एटलीस्ट हमने आज देखा कि गुरु का क्या क्वालिफिकेशन है, ये दोनों में होना चाहिए, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। जी आज जी हमने प्रभु। उपदेश अमृत और हरि भक्ति विलास इससे सीखा कि गुरु का क्या पात्रता है। जी प्रभु जी अभी कल ठीक। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु उसका भेद क्या है, अभी कल नहीं, मंडे को हम डिस्कस करेंगे, कल तो रिसाइटेशन करते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? गुरु का पात्रता क्या होना चाहिए वो हम डिस्कस कर रहे थे आज, है ना। तो बाकी अभी मंडे को आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का भी? अब प्रभु जी, जो गुरु का पात्रता क्या होना चाहिए, इसमें तो बस यही है ना कि गुरु परंपरा में होना चाहिए, तो सारे वाले ये गुण होंगे ही ना, जो गुरु, जो प्रभुपाद ने अब जो गुरु बनाए हैं, तो उनमें तो सारे कैसे, मतलब हाँ, ये तो कोई शिष्य नहीं ना जज करता ये चीज, तो फिर ये तो गुरु नहीं, परंपरा। आप जैसे गोल्ड लेते हो तो आप देखते हो 24 कैरेट गोल्ड कौन सा है, 22 कैरेट गोल्ड कौन सा है ना, 18 कैरेट गोल्ड कौन सा है, तो आपको तो इसको प्रभुपाद का मापदंड है ना प्रभु जी, वी आर तो ओनली टेकिंग प्रभुपाद मापदंड, नहीं, तो प्रभुपाद ने शास्त्रों बनाया में कहा गया है, प्रभुपाद जी ने बताया, शास्त्रों में से हरि भक्ति विलास में कहा गया गुरु लेने से पहले 1 साल दोनों एक दूसरे को परखते हैं, गुरु शिष्य को परखता है, शिष्य गुरु को परखता है ना। तो शिष्य को भी जानना चाहिए, शास्त्रों से पता चलेगा कि गुरु का पात्रता क्या। तो आप अभी दिया ना इतना सारा पात्रता के स्टैंडर्ड्स दिए गए, तो आप देखते हो कि हाँ गुरु निश्चित है, भजन में स्थित है, संशय को दूर कर पा रहे हैं, और डेडिकेटेड है टीचिंग्स के लिए, नो। So all this qualification, one has good qualities, one is very extremely compassionate, one is very humble. So you get to see that, right? 1 year, 2 years, you know, whatever time you take. So you can also judge actually who can be your guru, right? Once you accept your guru, then you should follow your guru. But शिष्य को भी अधिकार है कि अपना गुरु डिसाइड करे कौन है उनका गुरु। तो आप, so this is not to discriminate and to judge, but actually this is just to take a shelter. जिनको आप अपना जीवन समर्पित करना चाहते हो, वो आपको sufficiently, you know, inspire कर रहे हैं, because you're giving your life, so all your life you have to follow. So before that you have qualification to judge. जैसे पत्नी पति को स्वीकार करने से पहले she has right to choose actually which husband, right? Once you accept husband, then you're supposed to follow your husband. Same way. प्रभु जी, अभी आज देखिए qualifications of guru, so these are from Bhakti Vilas as well as from this, these are both related, I mean
we can talk about Shiksha as well as Diksha Guru, right? यस यस, ऐसा नहीं कि शिक्षा गुरु कम पात्र रहना चाहिए, शिक्षा गुरु भी पात्र रहना चाहिए। मीन्स अभी आपका कितना कमिटमेंट रहेगा, जैसे मैंने कहा कि सारे वैष्णव हमारे एक प्रकार से गुरु हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा उससे मिलती है, बट आपका कितना कमिटमेंट रहेगा एक शिक्षा गुरु के प्रति, है ना। तो जिनमें गुण है, डेफिनेटली यू नो यू देयर वर्ड डिजर्व दैट यू मस्ट फॉलो दिस वर्ड्स, इवन देयर शिक्षा गुरुज, बट इफ दे आर क्वालिफाइड, वेरी क्वालिफाइड, तो उनके वचनों का हम पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारा हानि होगा, आध्यात्मिक हानि होगा। तो हमारा कमिटमेंट कितना रहेगा शिक्षा गुरु के प्रति, राइट, उससे पता चलेगा कि वी कैन डिसाइड व्हिच टीचिंग्स विल टेक सीरियसली बेस्ड अपॉन दिस क्वालिफिकेशंस। ओके, मतलब प्रभु जी, शिक्षा गुरु जो है वो उन्हीं शिक्षा गुरु ऐसे चाहिए कि जो दीक्षा गुरु हैं उन्हीं के डिसाइपल हो, या नहीं फिर ऐसा भी हो सकता है कि दीक्षा गुरु एक है, शिक्षा गुरु अनेक है, तो फिर कैसे इसको समझे प्रभु जी? कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, और ऐसे नहीं वो संप्रदाय में आने चाहिए। हमारे इस्कॉन सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार डिसाइपल्स आप ऐसे कंट्री में होकर आपके गुरु नहीं आते, बट आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपके शिक्षा गुरु है वो अलग कोई गुरु के शिष्य, परंतु क्योंकि सब प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं, राइट, श्रील प्रभुपाद इज अ प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु, सो इट्स नॉट दैट स्पिरिचुअल मास्टर हैज टू बी सेम, ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है इस्कॉन में, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे मंदिर में सारे शिष्य आपको दिखाई देते हैं अलग अलग स्पिरिचुअल मास्टर्स के। तो जी प्रभु। बबीता माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा यही पूछ रही थी, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में क्या डिफरेंस होता है? कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके प्रभु, थैंक यू। कल हमारे साइड। थैंक यू वेरी मच प्रभुपाद की। 3 टाइम्स के चैन क्लोज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।